آج کل ایک خاتون پولیس آفیسر کی عبائے کے اندر سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہے جس میں خاتون نے عبایا پہنا اور ڈکیتی کے ملزمان کو بڑے انوکھے طریقے سے گرفتار کیا۔ میں نے تو اس کو فون پہ ہی بولا کہ بھائی میرا ایک بہت بڑا ضروری مسئلہ ہے اور اللہ کے بعد یہ آپ ہی میرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے مسئلہ تو یہی حل کر سکتا تھا نا کہ جو اتنی بڑی واردات ہوئی ہے۔ اس بندے سے میں نے تقریباً کوئی 7-8 مرتبہ فون پہ بات کی، پھر اس کے بعد میں نے اس کو پوائنٹیشن بتایا اور اپنے جو میرے جوان تھے ان کو اسی پوائنٹیشن پہ سب سے پہلے سادہ لباس میں تانیات کیا کہ آپ یہاں کھڑے رہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا۔ ناظرین، آج کل ایک خاتون پولیس آفیسر کی عبائے کے اندر سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہے جس میں خاتون نے عبایا پہنا اور ڈکیتی کے ملزمان کو بڑے انوکھے طریقے سے گرفتار کیا، ان کا موبائل نمبر حاصل کیا، ان کے ساتھ تعلق استوار کیا، ایک محسوس جگہ پر انہیں ملاقات کے لیے بلایا، اور جب وہ ملزم بیچارہ ملاقات کے لیے آیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو خاتون ایس ایچ او میڈم شرافت خان ہیں۔ تو آج وہی بہادر اور اس ٹیلنٹڈ مائنڈ والی خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس ڈیٹ ریڈ کا خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا اور ان ملزمان کے متعلق بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا میم، بتائیے گا پہلے کہ ان ملزمان کے بارے میں، اور سیکنڈ پھر بتائیے گا کہ بڑا انوکھا اور بڑا زبردست طریقہ آپ نے اپنایا ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے، تو کیسے ذہن میں خیال آیا؟ دیکھیں، ہماری جو پولیس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا، تو ہمیں ہر طرح سے ہر چیز کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو مائنڈ کو اوپن رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کب کس قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے اور اس خطرے میں ہم اپنا ڈیفینس کیسے کریں گے۔ تو یہ بھی یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ میں نے برقع پہنا اور اس کو ٹریس کیا۔ مطلب پولیس جو ہے الحمدللہ، ہماری پولیس جو ہے وہ آپ کو ملنگ کے روپ میں بھی نظر آئے گی، آپ کو فقیر کے بھی روپ میں بھی نظر آئے گی، آپ کو جو ہے ریڑے والے کے روپ میں بھی نظر آئے گی۔ وہ کرمنل کو اریسٹ کرنے کے سلسلے میں ہمیں پکٹ لگانی پڑتی ہے، کبھی کبھی 4 دن گزر جاتے کہ ہمیں وہ کرمنل جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ آ جائے اور ہم اس کرمنل کی سرکوبی کر سکیں۔ تو یہ میرا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ میں نے جب میں ویجیلنس انچارج تھی لائسنس برانچز کی، تو غلام قادر تھے وہ صاحب میرے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک تھے، تو ان کو ایک کمپلین آئی تھی بدین لائسنس برانچ کی۔ یہ 2013 کی بات میں کر رہی ہوں، 13-14 کی۔ تو تھیبو صاحب نے وہ کمپلین مجھے دی اور میرے بہت ہی مہربان آفیسر میرے ہر سلسلے میں رہنمائی کرتے تھے، تو میں بدین کے لیے نکل گئی۔ تو جب میں بدین گئی، میں نے وہاں پہ شکایتیں آ رہی تھی، تو میں جب وہاں پہ گئی تو نہ میرا لرننگ لائسنس بنا، نہ میری ٹرائی ہوئی گاڑی کی، اور میرا ڈائریکٹ ڈرائیونگ لائسنس بن گیا۔ اچھا، مجھ سے پیمنٹ لی گئی، ہینڈسم اماؤنٹ لیا گیا، وہ چیزیں کر کے میں آ گئی۔ جب میں آئی رات، تقریباً ظاہر ہے آنے جانے میں تو ٹائم لگتا ہے، رات کو میں پہنچی، سیکنڈ ڈے میں گئی اور اپنے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو ٹریفک کو میں نے پوری ڈیٹیل دی، تو پھر انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا۔ تو اسی طرح سے یہ بھی تھا ہمارے پاس کہ یہ بندہ بڑا شاطر تھا، اور کرمنل جو ہوتے ہیں وہ بڑے شاطر ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ جو آفینس کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کرمنل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ ایک نہ ایک دن قانون کی گرفت میں ضرور آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بندہ تھا۔ اس سے جب یہ ساری مجھے اپنے سورس سے نمبر پر اس کا پتہ چلا، تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ لوکیشن پہ بھی جاتے ہیں، اور مطلب کہ آج کل ٹیکنالوجی بڑی فاسٹ ہے، لیکن یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ 16 گھنٹے موبائل بند کرتا ہے تو اس کی لوکیشن ٹریس نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس بندے سے میں نے تقریباً کوئی 7-8 مرتبہ فون پہ بات کی، پھر اس کے بعد میں نے اس کو پوائنٹیشن بتایا اور اپنے جو میرے جوان تھے ان کو اسی پوائنٹیشن پہ سب سے پہلے سادہ لباس میں تانیات کیا کہ آپ یہاں کھڑے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے جیسے یہ بندہ آیا تو میں نے اس کو مطلب میں نے ایک کال کی کہ بھائی مجھے آکورڈ سا لگ رہا ہے، میں یہاں کھڑی ہوں، پبلک ہے، اور آپ جو ہے ذرا جلدی آئیے گا، ہو سکتا ہے نہیں آئے، کیونکہ اس طرح سے آ جاتے ہیں۔
आ जाते हैं। तो मैंने तो इसको फ़ोन पे ही बोला कि भाई मेरा एक बहुत बड़ा ज़रूरी मसला है और अल्लाह के बाद ही आप ही मेरा मसला हल कर सकते हैं। ज़ाहिर है मसला तो यही हल कर सकता था ना कि जो इतनी बड़ी वारदात हुई है। तो मैंने इसको यही कहा कि कहने लगा क्या मसला है? मैंने कहा मैं आपको फ़ोन पे नहीं बता सकती, फ़ेस टू फ़ेस मिलेंगे तो हम आपको फ़ोन पे बता देंगे। तो वो बड़ी मुश्किल से फिर जब ये आया तो मैंने जब दोबारा कॉल की तो इसने कॉल पिक की। जब इसने कॉल पिक की तो मैंने देखा, फिर मैंने दोबारा कॉल की, फिर इसने मुझे हाथ हिलाया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो बड़ा खुश होगा। हाँ, हाथ हिला के कि मैं यहाँ पे, मैंने कहा आप आगे आ जाए। जब ये आया तो तकरीबन 3-4 मिनट इससे मैं गुफ्तगू करती रही और एक नामखसूस अंदाज में मैंने अपने जवानों को बताया था कि मेरा जैसे इशारा मिले तो इसको पिक करना है। तो जैसे मैंने इनको इशारा किया उन्होंने इसको उठा लिया और मोबाइल में डाल के इसको थाने ले आए। फिर फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो इससे सारी चीज़ें बताई कि भाई मैंने इस तरह से चोरी की, सोना चोरी किया, पैसे चोरी किए, से चोरी के मोबाइल बरामद हुए, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई इससे। और इसे फर्दर और भी इन्वेस्टिगेशन वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे कि भाई इसने और कहाँ कहाँ वारदातें की है तो बड़ा शार्प बंदा। अच्छा मैं भी अच्छा शॉक की कैफियत में रह गई जब मैंने इसको देखा, क्योंकि जहन में ये होता है ना कि भाई काफ़ी डेल डोल वाला होगा, ये होगा, वो दुबला पतला सा फुर्तीला सा लड़का था, लेकिन ये कि है शातिर लड़का था। बेचारा बड़ा खुशी आ रहा होगा कि आज मैं चाह रहा हूँ किसी से मुलाकात के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, शायद उसके जहन में यही हो। अचानक उसकी सारी खुशी जो है वो ख़त्म हो गई जब उसको अंदाज़ा हुआ कि ये तो वो दबंग ऑफिसर है। नहीं उस टाइम तो वो ज़ाहिर बौखला गया कि एकदम ज़ाहिर मैं अबाया में थी और मास्क में मेरा चेहरा छुपा हुआ था। उस टाइम तो उसको शायद समझ में ना आई हो, लेकिन जब थाने आके फिर ज़ाहिर है मैंने अपना अबाया हटाया। अबाया महसूस क्यों पहना? अगर आप ना भी पहनती तो सही था, उसको कौन सा अंदाज़ा हो गया? तो यूनिफॉर्म तो था नहीं। एक्चुअली ये मैं अभी आपको एक बात बताऊं, जब मैं थोड़ा सा ये सर्विस रोड की पट्टी शारा फैसल की यहाँ पे मैं एक साइड पे खड़ी थी, तो जब मैंने इसको बोला कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, बहुत सारे लोग घूर घूर के देख रहे, तो ऐसे मुझे कहा कि आप थोड़ा सा उस तरफ आ जाइए क्योंकि यहाँ मेरे जानने वाले हैं। तो आप ये कह रहे कि फिर ये तो मैं बुरके में थी, अगर मैं वर्दी में होती तो ये तो कभी भी मेरे हत्थे नहीं चढ़ता, ये तो भाग जाता। नहीं, सादा कपड़ों में अगर आप होती, यूनिफॉर्म में ना भी होती। नहीं, बुरके में ये होता है ना, बुरके में थोड़ी सी शरीफ भी तो इंसान नज़र आता है ना, सादा नजर आता है बिल्कुल। घरेलो घरेलो शरीफ बिन जान के घरेलो कि ये तो घरेलो है, सीधी सादी है, तो उसको तो पता ही नहीं था ना। अच्छा मैडम, आप पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं और बिलखुसूस पुलिस के अंदर खातून ऑफिसर बहुत ज़्यादा हैं, और जैसे आप एज SHO हैं, वो भी एज SHO काम कर रहे हैं, IO काम कर रही हैं, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? मेरा तो उनके लिए यही मैसेज है कि जहाँ भी आपको क्रिमिनल जो है एक्टिविटी नज़र आए या आप क्रिमिनल को अरेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए हम कानून के दायरे में रहते हुए उसको अरेस्ट करते हैं, और इसमें ये कि हम हर वक्त तैयार है। हमने एक हलफ उठाया हुआ है, वफ़ादारी का हल्फ। वफ़ादारी मीन के मुल्क से वफ़ादारी और एक जज्बा, एक एहसास ये हमारे दिल में होता है, तो हम हर खतरे से फिर निमटने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी बात ये कि मौत एक दिन आनी है और मौत का कोई दिन नहीं है, तो जो शहादत की मौत होती है ना वो बेहतरीन मौत होती है। और उसमें देखें ना, अगर ये होता, ये पूरा एक गैंग भी होता ना, तो तब भी मैं नहीं घबराती कि इनके पीछे 5-6 बंदे वेपन लगे हुए, मुझे गोली लग सकती है। सुरजानी में मेरे साथ वाक़या हुआ, मेरा अभी भी स्टील क्लिप लगा हुआ है, 5 स्क्रू मेरे लगे हुए, लेकिन मैं बेड से उठी ऑपरेशन के बाद, दो ऑपरेट मेरे हुए, मैं बेड से उठी और उसी जज्बे से और उसी एहसास से मैं भरपूर मेहनत से अपना काम कर रही हूँ। और आपको जो लास्ट वाली मैंने बात बताई थी, वो जो बंदा 6-7 लाख लेके जाली पुलिस की भर्तियाँ करता था, वहाँ मैं डॉक्टर के रूप में गई थी, मतलब डॉक्टर का कोट पहन के गई थी, और उसको कि भाई मैं एज ए डॉक्टर बन के, तो वो ये समझा कि डॉक्टर, में पुलिस ऑफिसर बन के नहीं गई थी। तो यहाँ पे भी मेरे जहन में ये था कि ये बंदा जो है चौंक ना जाए, भाग ना जाए कानून की गिरफ्त से, तो इसलिए मैं बुर्का पहन के गई और ये आ गया हाथ में। नहीं माशाल्लाह, आप जहाँ भी जाती हैं आप हर वक्त वायरल रहती हैं। इससे पहले आगाज़ में लॉकडाउन में भी आपकी बहादुरी और आपकी जो ब्रिलियंट
आपकी सिचुएशन है वो हर जगह हमें नज़र आती है, और अब तो आपने कमाल ही कर दी है, ये तो खैर एंड हो गया। व्यूवर्स, इससे पहले मैडम ने हमें आज बता दी, ये मालूम हुआ कि एक जगह ये एज ए डॉक्टर बन के गई थी, एक शख्स था जो पुलिस में जैली भर्तियाँ करवा रहा था, तो उसको पकड़ा। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 2013 में इन्होंने एक लाइसेंस ब्रांच थी उसमें गई थी, और वहाँ पर भी जो है वो जो चीज़ें इन्होंने ऑब्ज़र्व की वो अपने आकर जो अफसरान बाला थे उनके साथ शेयर की थी। तो ये सारी स्टोरी थी मैडम शराफत खान साहिबा की, और जो आपने देखी, जो आपने सुनी, और हकीकतन मैडम शराफत खान साहिबा जैसी जितनी भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितनी भी ख़वातीन पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान में पॉजिटिव इमेज को क्रिएट कर रही हैं, जो पाकिस्तान को बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रही हैं, वो हमारे लिए एक बड़ा सास है, हमारे लिए एजाज़ की बात है। और मैडम ये बता दें, एज एस एच ओ शिप पाकिस्तान में एक बड़ी मुश्किल सी समझे कि पोस्ट समझी जाती है। अमूमन मेल हजरात इसके लिए समझे जाते हैं बेटर हैं। अपना एज एस एच ओ आप एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ये बात बोली ना कि ड्यूटी को हम फ़र्ज़, ये एक हमारा फ़र्ज़ समझ के हम अदा करेंगे। तो मैं ड्यूटी को एज ए ड्यूटी में एक इंजॉयमेंट करते हुए और अपने मेरे जो थाने के मेरे साथ जवान और अफसरान हैं, मतलब ज़ाहिर है कि वो हम लोग 24 घंटे ऑन ड्यूटी होते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि हमारे लिए कहा जाता है कि लेडी है तो लेडी क्या कर लेगी, लेडी है नहीं कर सकती है। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि जितना अच्छा काम लेडीज़ कर सकती है लेडी करती है। तो काम के ये तो बाकी सिर्फ लेडीज कर सकती है, और नहीं, इसके अलावा भी देखे ना, मैं एक बात बताऊँ, मैं पहली लेडी ऑफिसर थी जो मैं विजिलेंस इंचार्ज लाइसेंस ब्रांच एंड मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन की लगी थी। मोटर व्हीकल यानी MVI ब्रांचेस की, जहाँ फिटनेस होती है गाड़ियों की। तो चैलेंजिंग जॉब थी, वो चैलेंजिंग ड्यूटी थी मेरे लिए। और मैं मतलब एक दिल में एक जज्बा होता है, शौक़ होता है कि मुझसे लोग मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। हम एक उम्मीद है, हम एक चिराग है उनके लिए। तो और लेडी जब हम बेल्ट पहनते हैं, कैप पहनते हैं, हमारी वर्दी इक्वल है, तो हम जेंडर पे क्यों जाए? मैं जेंडर पे कभी भी नहीं जाती। मैं कहती हूँ कि जब फोर्स है, फोर्स में आप जेंडर पे नहीं जाइए, फोर्स में आप जाइए एज ए पुलिस ऑफिसर। नादरीन, ये थी मैडम शराफत खान साहिबा जो कि आजकल SHO टीपू सुल्तान तैनात हैं, और आपने सुनी इनकी कहानी और किस तरीके से ये मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करती हैं, उनका ताक़ुब करती हैं। और ये जो स्टोरी थी, इसके अलावा भी इन्होंने बताया कि इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे इसी तरह के मुल्ज़मान को इसी तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गिरफ़्तार किया है। तो यकीनन मैडम साहिबा जो हैं इस पर अप्रीशिएट और ट्रिब्यूट की मुस्तहिक हैं, और ऐसी ख़वातीन, ऐसी पुलिस अफसरान अगर पाकिस्तान में होंगी, और जो कि यकीनन बहुत ज़्यादा हैं भी, तो फिर पाकिस्तान हकीकी तौर पर जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।